Very good morning to all of you, beta. How are you? I hope you are doing well, and I hope you have understood the previous video, lecture number 4, in which I have explained you the treatment of goodwill. When a partner retires from the firm, how his share of goodwill is to be compensated by the continuing partners in the ratio of gaining. Now, so today we will do the practical questions. Now see the question number 17. As per D.K. Goyal and old book, 17 question को देखिए बेटा आप ज़रा. A, B, C, D are partners sharing profits in the ratio of 2:4:3:1. C retires. Now who is retiring? C. मैंने उसके ऊपर टिक कर दिया है. C retires and for this purpose goodwill is to be valued at 2 years purchase of average super profit. Now the question is saying that because C is retiring, अगर C retire हो रहा है तो अब हमें उसकी share of goodwill देनी होगी. For that purpose goodwill is to be calculated और यहाँ पर हम method कौन सा use कर रहे हैं? Super profit method. So goodwill is equals to super profit multiplied by number of years purchase. ये वाला हमें फॉर्मूला यूज़ करना है. आपको पता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ द फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. या तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और यू हैव टू कैलकुलेट. एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है. टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. इफ़ यू कैन सी द क्वेश्चन, you have given the 4 years profit. First year 40,000 profit, second year 10,000 loss, third year 1 lakh profit, fourth year 1 lakh 50 profit, and normal profit is given in the question rupees 56,000. So it means you no need to calculate the normal profit, just you have to calculate the average profit. So beta first step is we have to calculate average profit. Average profit is equals to आप सारे profits 4 साल का प्रॉफिट ले लीजिए. 40,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का लॉस हम बाद में लेंगे. थर्ड ईयर 1 लाख प्रॉफिट एंड फोर्थ ईयर 1 लाख 50 और जो सेकेंड ईयर लॉस था माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. हाउ मेनी? 4 ईयर्स. नाउ यू कैन सी द टोटल दैट इज 1 लाख 40 प्लस 1 लाख 50 2 लाख 90 माइनस 10 दैट इज 2 लाख 80,000 is the total profit of the 4 years. So we can see that the average profit will be how much? 2,80,000 divided by 4, that is rupees 70,000. Now we can put the formula. Goodwill is equals to super profit. First of all super profit हमें निकालना पड़ेगा. So first take out the super profit. मैं नीचे निकाल रही हूँ. Super profit is equals to average profit 70,000 रुपीज़ एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज़ 56,000. तो अगर आप दोनों को माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाता है 14,000. सो गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इज़ 14,000 एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज़ 2 years परचेज. सो 2 years परचेज, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा गुडविल, that is rupees 28,000. So when C is retiring, the firm goodwill is being calculated as rupees 28,000. We have followed the formula of super profit. ये बेटा गुडविल पूरी फर्म की है. अब आपको इसमें से C का शेयर निकालना है. C is the share of goodwill. C is the share of goodwill आप निकालेंगे 28,000 में C का शेयर कितना है बेटा? 3/8. 3/10. 3/10 अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाता है बेटा, दैट इज रुपीज 84. अब ये सी को कौन देगा, कंपनसेट करेगा? ए, बी एंड डी. इफ इन द क्वेश्चन नथिंग इज मेंशन दैट द हाउ मच दे हैव गेन, ए, बी एंड डी, सो वी विल अज्यूम दैट gaining ratio will be taken as 2:4:1 will be considered as a gaining ratio. Now what will be the journal entry for that? In the previous video I have said you whose capital account will be debited, sacrificing partner or gaining partner? गेनिंग पार्टनर. ए, बी एंड डी को तो हम डेबिट करेंगे,
क्योंकि ये इनके अकाउंट से लेकर हम किसको देंगे, सी को. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट. Format I am not using, you have to make the format for journal entry. A is capital account debit, B is capital account debit. To what? A is capital, B is capital, D is capital, account debit. To C is capital. I hope it's clear to you बेटा. A, B and D तीनों मिलकर C को देंगे. दैट इज़ 2:4:1. 8400 को आप 2:4:1 में देते हैं. आप 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाता है 1200 मल्टीप्लाइड बाई 2. दैट इज़ 2400 ए के अकाउंट से डेबिट होगा, 4800 बी के अकाउंट से डेबिट होगा एंड 1200 डी के अकाउंट से डेबिट होगा. नरेशन यू कैन राइट. नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. समझ में आ गया. इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी हुई थी. अगर हमें एग्जिस्टिंग गुडविल दी होती तो हम उसकी एंट्री क्या करते, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और ओल्ड रेशियो में हम उसको राइट ऑफ कर देते. नाउ शुड वी गो, आप बेटा 17 के बाद 18, 19 आप यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. नाउ आई एम डूइंग फॉर यू क्वेश्चन नंबर 20A. मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20A कर रही हूँ अभी. प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप. P, R and S आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स. P, R and S पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. नाउ आगे क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर his share of goodwill is to be valued at half of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. बेटा इस लाइन को बड़ा ध्यान से समझिए आप. क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो जो उसका हम शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे वो हम जो 4 साल का प्रॉफिट होगा 4 साल के प्रॉफिट को हमें टोटल करना होगा और उसका 4 साल के टोटल के प्रॉफिट में जितना जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर बनता है प्रॉफिट का, उसकी हाफ गुडविल मानी जाएगी. मान लो फॉर एग्जांपल अब इस क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है, आर. अगर मान लो टोटल प्रॉफिट 1 लाख बन जाता है तो अगर हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि आर का प्रॉफिट हो जाता है 50,000 उसमें 4 साल के प्रॉफिट में, तो उसकी आधी कितनी होती है 25,000. तो 25,000 हम उसकी शेयर ऑफ गुडविल को मानेंगे यहाँ पर. तो यहाँ हमें इस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करना है. तो नाउ क्वेश्चन इज सेइंग द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज. तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 स्टेप टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना टोटल प्रॉफिट आएगा फिर उसमें उसका पहले हम स्टेप 1 करते हैं. टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट हाउ मेनी ईयर्स बेटा, लास्ट 4 years. अगर हम देखें तो लास्ट 1,20,000 प्लस 60 1,80,000 प्लस 80 मैं लिख लेती हूँ रुपीज़ 1,20,000 प्लस 60,000 रुपीज़ प्लस 3rd ईयर में कितना है लॉस है उसको बाद में लेंगे, प्लस 4th ईयर का 80,000 का प्रॉफिट एंड माइनस लॉस 20,000. तो अगर हम देखें टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट दिखाई दे रहा है बेटा आपको, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आपका आ रहा है दैट इज़ रुपीज़ 2,40,000. ठीक है. स्टेप 2, अब हमें स्टेप 2 में पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. किसका, आर का. आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो मेरे बच्चे आर का शेयर कितना है 3/8. तो रुपीज़ 2,40,000 4 साल का टोटल प्रॉफिट है. इसमें आप उसका 3/8 निकाल लेते हैं तो ये उसका शेयर आ जाता है 90,000. तो क्वेश्चन में कहा जिसकी भी डेथ होगी उसका 4 साल का टोटल का प्रॉफिट में जितना उसका शेयर बनेगा उसकी हाफ उसकी शेयर ऑफ गुडविल मानी जाएगी. तो इसका मतलब आर्स शेयर ऑफ गुडविल कितनी मानी जाएगी, उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट की हाफ. तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था जो हमने स्टेप 2 में निकाला 90,000.
तो उसका हाफ कितना आ गया मेरे बच्चे, दैट इज ₹45,000। क्लियर टू यू ऑल। नाउ अब ये 45,000, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा हमने उसकी शेयर ऑफ गुडविल निकाली है या नहीं निकाली है, अभी हमने निकाल ली उसकी शेयर ऑफ गुडविल। कितनी आ रही है बच्चे, उसकी शेयर ऑफ गुडविल आ रही है 45,000। नाउ अब हमें इस क्वेश्चन में सेकंड कह रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अज्यूमिंग दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P and S in future will be 3:2। स्टेप 1 तो हमने निकाल लिया उसकी शेयर ऑफ गुडविल। अब हमें निकालना है सबसे गुडविल की एंट्री करने के लिए, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा क्या, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, गेनिंग रेशियो, क्योंकि जो भी उसकी गुडविल है वो P और S उसको किस रेशियो में देंगे, गेनिंग में। सो P का गेनिंग शेयर आपको निकालना आता है ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, तो कितना है न्यू 3/5 है P का, तो ओल्ड कितना हो गया 4/8। यू विल टेक द एलसीएम 40, तो आप देखेंगे कितना गेन किया P ने 4/40। सेम यू विल टेक आउट ऑफ S, 2/5 इज अ न्यू शेयर एंड ओल्ड इज 1/8, तो इट मीन्स यू विल टेक द एलसीएम 16 - 5, अब 16 हो गया, पहले 5 था तो उसने कितना गेन किया 11/40। सो 4:11 इज द गेनिंग शेयर। नाउ डू द एंट्री, हुज अकाउंट विल बी डेबिटेड, P एंड S के अकाउंट से लेंगे और किसके अकाउंट में डालेंगे, R। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल, क्योंकि R रिटायर हो रहा है तो आर के कैपिटल में आप क्रेडिट करेंगे 4:11 में। उसका शेयर ऑफ गुडविल हमने निकाला 45, आप डिवाइडेड बाय 15 कर दीजिए 3, तो P देगा 12,000 एंड R देगा, S देगा 33,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को। शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इस वीडियो में। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर दैट इज 21। देखिए बेटा 21 इज सिंपल क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने लिया है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। नेक्स्ट ऑन 15th March B डाई, B की डेथ हो गई है एंड द न्यू रेशियो बिटवीन A एंड C that is 5:4। कितना है बच्चे 5:4। On B's death the goodwill of the firm was valued at ₹75,000। गुडविल ऑफ द फर्म जिस दिन बी की डेथ हो रही है उस दिन फर्म की गुडविल है मेरे बच्चे दैट इज ₹75,000। अब आपको 75,000 में से किसका शेयर निकालना है, क्योंकि डेथ हो गई है बी की, तो बी को हमें देना पड़ेगा बीज शेयर ऑफ गुडविल। अब हम बीज शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे 75,000 में। अगर आप देखें तो बच्चे उसका शेयर कितना बनता है 3/9। 3/9 मीन्स आप 1/3 ले लीजिए, तो इसका शेयर बनेगा 25,000। दिस इज द स्टेप 1 and step 2 you have to calculate gaining ratio, क्योंकि आपको ओल्ड भी दिया है, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू। तो पहले आप A का निकालेंगे, A का न्यू है 5/9 और ओल्ड है 2/9। 5 हो गया, पहले 2 था तो कितना गेन किया 3/9। C का न्यू शेयर है 4/9 और 4/9 ही पहले था, तो इसने ना कुछ गेन किया ना कुछ सैक्रिफाइस किया, तो इट मीन्स बी को सिर्फ कौन कंपनसेट करेगा, ए, क्योंकि ए गेन कर रहा है 3/9। अगर आप देखें बी का शेयर 3/9 है और वो पूरा 3/9 किसने ले लिया, ए ने, तो इसीलिए ए का शेयर अब बन गया 5/9
और 4/9 पहले सी का था, सी का भी 4/9 है, सी ने कुछ भी गेन नहीं किया. तो इट मीन्स ऑल फुल 25,000 विल बी कंपनसेटेड बाय whom? By A. So the entry will be A's capital account debit. A will be A compensate to B. A अपने कैपिटल में से B को कंपनसेट करेगा. कितना बने बच्चे? 25,000. तो बेटा आप लोग को समझ में आ गया, आज आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है दैट इफ continuing partner, any continuing partner neither neither gain any share nor any loss his share, in that case he will not compensate to the retiring partner. So it means only the gaining partner will compensate the retiring partner. Thank you so much, beta.